Hello, all my dear students. A precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash from Subrat Singh Children Academy, and welcome you to all once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And as you know, at present your chapter number 3, human reproduction, is running. And in previous videos we have discussed about the process of oogenesis as well as its hormonal control. So today I am here with the new video again of structure of the ovum as well as comparison of the spermatogenesis and oogenesis, and if time will permit we will also search it out mammary gland. Okay, so without wasting the time I am starting with your topic, that is structure of an ovum. So structure of an ovum, as you know, first of all, ovum or egg, this is what? Mature female gamete. Mature female gamete. Okay. And from here, this line, the line number 1, that is very, very important. So what is the impact of the line number 1 and how the question may be framed in your board and competitive examination? Let's quickly search it out. The question may be framed that why spermatogenesis is continuous and oogenesis is discontinuous. So this question, that is comparison of spermatogenesis and oogenesis, is very, very important for your board examination. And structure of an ovum is much significant for your competitive examination. Diagram of the ovum can be given and ask for the labeling. Okay, so you have to label A, B, C and whatever is given. And another question that may be framed from the layer of the ovum. Okay, zona pellucida, how zona pellucida is secreted, what is the function of the zona pellucida, what is the function of the corona radiata, how corona radiata is secreted, which of these zona pellucida and corona radiata is cellular, which one is non-cellular, which one is jelly-like. Okay, so all these questions will be discussed today. So the line number 1, that is structure of egg or ovum. First of all, फीमेल एग जिसकी हम बात कर रहे हैं कहाँ, ह्यूमन में, इट हैज वेरी लेस यॉक कंटेंट, वेरी लेस यॉक कंटेंट, दैट्स व्हाई वी यूज टर्म माइक्रोलेसिथल. तो क्वेश्चन नंबर 1 यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन फीमेल एग इज, ऑप्शन दे देगा माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, ठीक है, और भी आपको ऑप्शन दे सकता है. तो आपको किस ऑप्शन पे जाना है? माइक्रोलेसिथल. वैसे भी माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है बेटा. इसकी जो शेप है वो बहुत ही छोटी होती है और स्फेरिकल होती है. नियरली ये 0.1 mm के आसपास होता है. और ध्यान देना है कि ये नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. तो ये 0.1 mm का है और इसके साथ साथ ये कैसा दिखता है? स्फेरिकल, या इसी को आप कह सकते हो राउंड. ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स. अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए, फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? अंदर हमें देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज विट्टिलाइन मेम्ब्रेन. Then after we will find out zona pellucida. Zona pellucida ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है. तीसरा हम देखेंगे कोरोना रेडिएटा. ओके, दिस इज व्हाट फ्रॉम इनर टू आउटसाइड. ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम इनर टू आउटसाइड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द ओवम और एग. तो बताओगे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा है और कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर की तरफ है. बट अगर आपसे पूछे आउटसाइड इनसाइड, तो आप कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे. तो चाहे इनसाइड टू आउटसाइड पूछे या आउटसाइड टू इनसाइड पूछे, आपको ध्यान में क्या रखना है? अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछा तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है. ओके, और अगर आउटसाइड से इनसाइड पूछे तो उसी को उलट के आप इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे. ठीक, एक तरह से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह है. अगर आपसे इनसाइड आउटसाइड पूछा गया तो इस डायरेक्शन में, और आउट से इनसाइड पूछा गया तो इस डायरेक्शन में जाएंगे आप. ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं बेटा. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है और इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं? विट्टिलाइन मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? विट्टिलाइन मेम्ब्रेन. आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पास बेटा कॉर्टेक्स होता है. तो
बाहर का जो कॉर्टिकल रीजन है ये लेस डेंस होता है. सो दिस आउटर कॉर्टिकल रीजन इज लेस dense and this outer cortical region that is less dense is known as exoplasm. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. एंड इनर टू दिस देयर इज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड दैट डेंस साइटोप्लाज्म इज नोन एज ooप्लाज्म. क्या बोलते हैं? ooप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म और ooप्लाज्म दोनों किसके पार्ट हैं? कॉर्टिकल रीजन के पार्ट है. रिमेंबर इन दिस ooप्लाज्म जो अंदर का डेंस रीजन है इसमें आपको अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे न्यूक्लियस के लोकेशन में. तो यहां पे ध्यान ये देना है कि जो न्यूक्लियस होता है किसका? इस एग या ओवम का, वो होता है एग सेंट्रिक. इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? एग सेंट्रिक न्यूक्लियस. एग सेंट्रिक न्यूक्लियस होता क्या है कि ये एग के अकॉर्डिंग होता है. आपने देखा होगा कोई भी एक नॉर्मल सेल है, वैसे ये आपका ओवम और एग इसको भी हम एक सेल ही मानते हैं. तो जो नॉर्मल सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, बीच में होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे कहाँ होता है कि टिल्टेड होता है अपर मोस्ट साइड में, और इसी वजह से इस एग की पोलैरिटी होती है. तो ये जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? अपोजिट एंड जो है एक डेफिनेट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जिधर की तरफ आपका ये न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं एनिमल पोल, एंड ये वाला जो दूसरा पोल है इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर्स थ्रू दिस एनिमल पोल. क्योंकि न्यूक्लियस भी इसके लिए नजदीक पड़ेगा तो स्पर्म और एग का न्यूक्लियस आसानी से फ्यूज भी कर सकता है. तो ध्यान ये आपको रखना है. जैसा मैंने बताया कि कॉर्टिकल रीजन इसका एक्सोप्लाज्म जो कि आउटर है और इनर ooप्लाज्म में डिवाइड है. ooप्लाज्म जो है डेंस है, एक्सोप्लाज्म लेस डेंस होता है. ठीक. और इसी ooप्लाज्म के अंदर एक पर्टिकुलर सेल के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी. अब हमको बताना है आपको इसके बाहर एक लेयर होती है बेटा. ये जो एनिमल पोल है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. दिस पोल इज नोन एज एनिमल पोल. ठीक है ना. और ये क्या है? एग सेंट्रिक न्यूक्लियस है. तो यहां से मैं इसको हटा ही देता हूं. इसी को बोला जाता है जर्माइनल वेसिकल. इसी को आप क्या बोलते हो? जर्माइनल वेसिकल. और ये किस साइड का पोल है? एनिमल पोल है. हमने इसलिए हटाया कि जो बाकी इसके लेयर्स हैं उसको हम आसानी से दिखा सकें आपको बना के. तो ये हमने लिख दिया यहाँ से दूसरा वाला पोल जिसको क्या कहा गया था? वेजिटल पोल कहा गया था. एंड जैसा मैंने आपको बताया इसके बाहर बेटा एक नॉन सेलुलर लेयर होती है और इसको हम जेली मेम्ब्रेन भी कहते हैं. और इसको हम फटाफट यहाँ से ड्रॉ करके दिखाते हैं. दिस लेयर and this layer is known as zona pellucida. Remember, अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटेलाइन मेम्ब्रेन है दोनों एक ही है जिसको आप कहोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वेटेलाइन मेम्ब्रेन. दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल इट सेल्फ. यानी इसको कौन? सेल ने खुद सिक्रेट किया. तो ये हम लिख सकते हैं सिक्रेटेड बाय सेल इट सेल्फ. तो इनको सेल ने खुद से क्रिएट किया है. इस वजह से ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में नहीं आएगा. क्या आएगा कि जोना पेलुसिडा को किसने सिक्रेट किया? तो जोना पेलुसिडा को सिक्रेट करने का काम मैंने पहले भी आपको बताया था फॉलिकुलर सेल्स करती हैं. सो जोना पेलुसिडा इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर्स. तो जो आपका जोना पेलुसिडा है ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है. इसको कौन? फॉलिकुलर सेल्स ने सिक्रेट किया हुआ है. और ध्यान देना है दिस इज व्हाट? नॉन सेलुलर. Okay, and in the last follicular cells organize themselves and they form a radiating structure. मतलब उन्होंने जोना पेलुसिडा को सिक्रेट किया. अब जोना पेलुसिडा को सिक्रेट करने के बाद वो खुद ऑर्गेनाइज हो जाएंगी. ऑर्गेनाइज होने के बाद एक रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी. और आप सभी को मालूम है बेटा कि उस हम रेडिएटिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा. क्या बोलते हैं बेटा? कोरोना रेडिएटा. तो हम कुछ लेयर्स आपको बना दे के दिखा दे रहे हैं. आपको ऐसे ही बना के रखना है. सो दिस वन इज व्हाट? कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा. ठीक है. और ये जो कोरोना रेडिएटा है ये किससे बनी है? खुद इनको फॉलिकुलर सेल्स ने बनाया हुआ है. सो दिस वन इज व्हाट? कोरोना रेडिएटा. एंड कोरोना रेडिएटा कौन है? इनको किसने बनाया है? फॉलिकुलर
सेल ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फॉलिकुलर सेल्स अरेंज होके क्या बना ली है, कोरोना रेडिएटा। यानी कोरोना वर्ड बायो में बहुत पहले से है और तबाही इसने अब मचाना शुरू किया है। तो कोरोना रेडिएटा दैट इज अ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर जो आपको यहां से दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। ठीक है, या हम कह सकते हैं ओवम। और ध्यान दीजिए कि ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एंड सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर इन ह्यूमन फीमेल्स। और कह सकते हैं कि ओवम और एग जो किसका है, ह्यूमंस का है, इसके पास यॉक कंटेंट बहुत कम है, इस वजह से ये माइक्रोलेसिथल है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास यॉक कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो उस यॉक को सिक्रेट करने के लिए उनके पास स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, नोट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनमें यॉक का कंटेंट काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको ड्रोसोफिला बताया था, ड्रोसोफिला के साथ साथ आपने जैसे भी जितने भी एग देखे जिनमें वो उनको बाहर, शरीर से बाहर रिलीज किया जाता है, तो एक्स्ट्रा पेरेंटल केयर वहां पे होती नहीं है, तो उसमें यॉक कंटेंट उसी एग में भरा होता है और वो यॉक ही उसको क्या कराता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लैम्प ब्रश क्या होता है बेटा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज फाउंड। और ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है यही क्या करता है, यॉक की सिंथेसिस या यॉक का फॉर्मेशन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर क्या है। तो उससे पहले हम इसको यहां से हटा देते हैं। ओके देन, सो लेट्स कंपेयर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड here oogenesis. And this is what triple star question, means that most important question for your board examination. बहुत ही सिंपल है यार। What is the site of spermatogenesis? Site of spermatogenesis is testis. क्या होता है बेटा, टेस्टिस। आपको मालूम है टेस्टिस में कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड साइट ऑफ oogenesis कौन, ओवरी। और ओवरी में अगर आप लिखना चाहें तो ग्राफेन फॉलिकल लिख सकते हैं। फिर अगर हम देखें जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें बिगिनिंग, तो जो बिगिनिंग हो रही है बेटा किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, आफ्टर प्यूबर्टी हो रही है, आफ्टर प्यूबर्टी। एंड हियर जो oogenesis है ये कब स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको आप लिख सकते हो बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। अब आप रिकॉल करिए, मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। ये प्यूबर्टी के पहले स्टार्ट हुआ, बर्थ के समय अरेस्ट हुआ, उसके बाद फिर प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ, तो ये चलता रुकता रहता है। इसी वजह से इसको जो प्रोसेस है यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कौन सा प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अभी तक हमने कितने डिफरेंसेस देखे, 3 डिफरेंसेस देखे। एक और डिफरेंस हम आपको बताते हैं, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन आपने देखा था कि जो मियोटिक डिवीजन था कहाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो बेटा क्या था, सिमेट्रिकल था, जिसको आप कह सकते हैं इक्वल डिवीजन हुआ था साइटोप्लाज्म का। जबकि वही अगर आप देखें कहाँ, oogenesis में, तो ये क्या था, एसिमेट्रिकल था, और उसी की वजह से उसको हमने क्या कहा था, अनइक्वल डिवीजन है किसका, साइटोप्लाज्म का। इधर अगर हम अगला पॉइंट देखें, पोलर बॉडी, तो इधर कोई पोलर बॉडी नहीं बनी थी, नो पोलर बॉडीज, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया साइटोप्लाज्म का। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया साइटोप्लाज्म का तो पोलर बॉडी बनी ही नहीं। यहां पे क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी वर फॉर्म्ड, यानी इधर क्या हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। अगला पॉइंट अगर हम देखें, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 एंड 4th। लेट्स कंसीडर वन मोर नंबर्स। अगर हम देखें कितने बनते हैं, सो 1 germ cell, हाउ मैनी sperm, 1 germ shell, हाउ मैनी, 4 sperm, एंड हियर 1 germ shell, हाउ मैनी egg, 1 egg। तो हमको लगता है 6 डिफरेंसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंसेस आर हियर। और ये 6 डिफरेंस ही मैक्सिमम पूछे गए हैं। ठीक है, अगला अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से देखें, मोटिलिटी।
सो बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म्ड एंड मोटाइल, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से मेल गैमीट बनता है वो क्या होता है, मोटाइल। या आप कह सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल मेल गैमीट। और इधर क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, यानी इधर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट बनता है और इधर मोटाइल फीमेल गैमीट बनता है। इन द लास्ट हम देख लेते हैं पोजीशन। तो पोजीशन में आप देखेंगे कि मेल्स जो हैं, मेल्स आर नॉट बॉर्न विथ स्पर्म, यानी जो मेल है ये स्पर्म इनके साथ जन्म के समय नहीं होता है, प्यूबर्टी के बाद बनना शुरू होता है। और जो कि फीमेल्स क्या होती हैं, फीमेल्स आर बॉर्न विथ एग, यानी फीमेल्स जो हैं उनमें एग कितने बनेंगे ये पहले से ही डिसाइड होता है, क्योंकि उनमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और उन्हीं प्राइमरी फॉलिकल का एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या करना है, एग या ओवम को रिलीज करना है। तो इतना आपके लिए बेटा बहुत है। इसमें से 2-3 डिफरेंसेज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन मे बी फ्रेम्ड एज अ 2 और वी कैन से दैट 3 मार्क क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द structure of the ovum and comparison of the spermatogenesis and oogenesis. Let's quickly discuss in the last about mammary gland. Okay then students, in the last we are going to discuss about the mammary gland. So you all aware about this. Mammary gland is responsible for production and release of milk. Production and release of milk. Important क्या है? This line is important. This is what? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये क्या होती है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज मेड अप ऑफ mammary loops, what 15 to 20 divided by adipose टिश्यूज, यानी जो मेमोरी ग्लैंड को बनाने का काम कौन कर रहा है बेटा? मेमोरी लोब्स कर रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और ये किस में डिवाइड होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। और यही जो एडिपोज टिश्यू है ये डिसाइड करता है कि जो ब्रेस्ट है उसकी साइज क्या होगी। तो जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होगा उतनी ही ज़्यादा साइज इनलार्ज होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर। एंड अगेन दीज मेमोरी लोब्स आर डिवाइडेड इनटू, सो नेक्स्ट मेमोरी लोब्स are divided into lobules। ये किस में डिवाइड होते हैं? लोब्यूल्स में, ठीक है। एंड these lobules contains alveoli। इनके पास क्या होता है? alveoli होता है that secrete milk। ध्यान दीजिएगा कि जो मेमोरी ग्लैंड बनी हुई थी वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स से बनी हुई थी। वो मेमोरी लोब्स एक दूसरे से डिवाइडेड थे, किसके द्वारा? एडिपोज टिश्यूज के द्वारा। और उसके बाद जो मेमोरी लोब्स थे इनका फर्दर डिवीजन हुआ किसमें? लोब्यूल्स में। और उन्हीं लोब्यूल्स के पास क्या है? एल्वियोलाई है। एंड दैट एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ सेक्रेशन ऑफ मिल्क। एंड इन द लास्ट दिस एल्वियोलाई secrete milk into network of secondary tubules, and that converge to form mammary duct। ओके बेटा, यानी जो एल्वियोलाई मिल्क सिक्रेट कर रही हैं वो एक नेटवर्क है सेकेंडरी टिब्यूल्स का या टिब्यूल्स का, उसमें सिक्रेट कर रही हैं और वो कन्वर्ज होकर क्या बना रहा है? मेमोरी डक्ट। लास्ट में जो आपका मेमोरी डक्ट है, मेमोरी डक्ट फॉर्म्स मेमोरी एम्पुला। क्या बनाता है ये बेटा? मेमोरी एम्पुला। यानी क्या हुआ? मिल्क जो सिक्रेट किया गया एल्वियोलाई के द्वारा वो एक नेटवर्क था सेकेंडरी टिब्यूल्स का, उसमें सिक्रेट किया गया। अब सेकेंडरी टिब्यूल्स आगे चल के क्या बना ले रहे हैं? आप यहां से देखिए, सेकेंडरी टिब्यूल्स ने बनाया था मेमोरी डक्ट को, और मेमोरी डक्ट आगे चल के क्या बना ले रही हैं? मेमोरी एम्पुला को।
and this mammary ampulla converge to form lactiferous duct that converge at the tip known as निपल। उसको क्या आप बोलते हैं? निपल बोलते हैं। कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है। मेमोरी ग्लैंड को बनाने का काम किसने किया? मेमोरी लोब्स ने किया। मेमोरी लोब्स जो थे वो सब डिवाइडेड हुए किसमें? लोब्यूल्स में। लोब्यूल्स ने क्या बनाया? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या सिक्रीट हुआ? मिल्क। वो मिल्क कहाँ सिक्रीट हुआ? एक नेटवर्क था सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स का, जिसको आपने कहा मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ने क्या बनाया? मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला ने क्या बनाया? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट के पास आपको मालूम है इसके पास लैक्टिफेरस ग्लैंड्स भी होती हैं। और लास्ट में क्या होता है? इस लैक्टिफेरस डक्ट को कन्वर्ज करता है कौन? निपल, जहां पे जाके ड्रेन हो जाते हैं और मिल्क क्या हो जाता है? सिक्रीट हो जाता है। सो ये है मेमोरी ग्लैंड। ये बनी हुई है किससे? ये बनी हुई किससे? 15 से 20 मेमोरी लोब से। और ये जो मेमोरी लोब्स हैं ये किस में सब डिवाइडेड हो रहे हैं? सब डिवाइडेड इनटू lobules, and these lobules contain alveoli। ये क्या है? साइट ऑफ मिल्क secretion, and this alveoli converge to form the network of secondary tubules known as mammary duct, and these mammary duct form mammary ampulla, and these mammary ampulla converge to form lactiferous duct, and these lactiferous duct drain into nipple. So let's quickly recap. Mammary gland made up of 10 to 15 mammary lobes subdivided into lobules, and these lobules contains alveoli, site of milk secretion, and these alveoli converge into network of secondary tubules, those form mammary duct, and mammary duct form mammary ampulla. Mammary ampulla later on converge to form mammary, or we can say that lactiferous duct, and this lactiferous duct drain into nipple. तो इस तरह से मेमोरी ग्लैंड जो कि लोब से बनी, फिर सब डिवाइडेड हुई लोब्यूल्स में, फिर जिसके पास एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई ने मिल्क को सिक्रीट किया, सिक्रीट करने के बाद यानी उसने बनाया, प्रोड्यूस किया, और बनाने के बाद मेमोरी डक्ट को, फिर मेमोरी एम्पुला, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ कहाँ? निपल में ड्रेन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी डाउट। सो don't forget to like the video, subscribe the channel, and also you can leave your valuable feedback in your comment section. So that is all about for today. Thank you for watching and keep smiling. Jai Hind.